हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 7.3 पार्ट 1। In the part 1 of this video we are going to do some of the questions of practice set 7.3, and also we are going to do the lot of concept which is very important for the further practice set and for the whole of this chapter. That concept we are going to learn and which is very new to you also, so you need to listen the whole video full. Don't skip this video, watch it full till the end. Now let's start with our today's topic. If you're new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video. Now let's start with our today's topic. Now let's start with our today's new concept that we are going to learn and which is very important for practice at 7.3 also and for the remaining practice sets also. So you must listen to it very carefully, listen to the end, and if you still have a doubt at the end, you must tell me in the comment section. I will surely solve your doubt. So let's start. Classification of data. First, I would like to remember you that what was data. Means we have learned in the practice at 7.2 concept that what is data. So in the data, it is a collection of the information gathered, which is called as data. Okay. So now we are going to learn about classification of data. Last time we had learned about primary data and secondary data. I hope that you remember. Primary data is the data collected by going personally at their home, and secondary data is the data which is collected by the agencies, which is used. They take from them and use it in different way. Like I can give you an example. The government asks for the schools to give the attendance records. So the government has not taken the or collected the attendance records, but the school has first only kept the or taken the attendance records, and now the government is using those. Okay, this is the example of secondary data. Now just we have to learn about classification of data. Just the collection of raw data at random may not be meaningful. Means we randomly, if we collect the data, will not be meaningful because that data will be wrong. It can be false. We can make many mistakes also. To make the data meaningful as per the requirement of the investigator, the collected data should be arranged in a specific manner. So to make the data meaningful, we should not keep it random. It should be in a specific manner so that the investigator gets it very easily to understand it. It should be very easy to understand for the investigators. Then only he will use that data. For such a purpose, the data should be arranged in ascending or descending order. So the data should be arranged in an ascending or descending order. So I hope that you all know about ascending and descending order, and the lower standards you have studied about ascending and descending order. So ascending order is from the smaller to the bigger, and descending order is from the bigger to the smaller. So the data, if I could take an example, let's take an example that we are taking a comparison of population in between the districts in the Maharashtra state. So what we will do, if we have to write it as ascending to descending, we will write first the lowest population district, then little more than it, then little more. And if we have to write if we can also write as descending order, in the descending order, so then we will write the highest population, then little low, then it, then little low, then little low. Okay, so this way we have to write the data, and it should be like that only, so it is easy to understand it. या तो ascending होना चाहिए order में, या तो descending order में होना चाहिए. Remember this. Now arrangement of the data is ascending descending order. Now let's see about the arrangement of data. The collected data arranged in ascending or descending order is called arranged data. तो जो data हम लोग ascending या फिर descending order में अरेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं arranged data, क्योंकि हमने उसे अरेंज किया है properly in a specific manner. In order to make the data more intelligible,
It can be represented in the tabular form, which is known as frequency distribution table. तो इस डेटा को और ज़्यादा what we can say intelligible means more attractive and also more informative or more easy to understand, we can make it in tabular form, and we will which that tabular form is known as the frequency distribution table. You have learned about frequency distribution table in 8th standard also. This is very interesting about frequency distribution table. It's very easy also to draw. Now let's learn about some types of frequency distribution table. There are two types of frequency distribution table. First is ungrouped frequency distribution table. You have not learned about types of frequency distribution table in lower standards. Now in this standard we are going to learn about that also. So this is a new concept for you, so listen it very carefully. It can be little confusing, but if you will listen properly you will understand it. What is ungrouped frequency distribution table? When a raw data is arranged in ascending or descending order and tabulated without sorting it any group, it is called an ungrouped frequency distribution table. It means that we are not forming a group, small groups of the data, and we are not arranging in groups. That's why we call this as ungrouped frequency table. Means we are arranging it in specifically. We are taking specific numbers. You have done ungrouped types of frequency only in the lower standards. I hope you can see this frequency example. That here the record of marks out of 20 in mathematics in the first unit test is as follows. So this is 26. This is the whole data. Okay. So in ungrouped frequency table, actually what we do is, see. What we do, we are taking the specific score from the ascending to this is in ascending order because we are taking the smallest to the highest. So and we are taking specifically number 6, 7, 8, 9. We are not taking that 6 to 7 one group, 7 to 8 second group, 8 to 9 third group. So that is not that is grouped frequency table. But in ungrouped frequency table, we don't take groups and we just take स्पेसिफिक नंबर्स ओनली. मैं आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 20 इन मैथमेटिक्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज एज फॉलोज. This is the whole data. Answer the following questions from the above information. Let's first answer this. How many students scored 15 marks? अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होता है तो उससे हमें ज़्यादा इजी हो जाता है फाइंड आउट करना ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स. आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल से देखकर आप वो आंसर बहुत इजीली फटाफट कर लेते हैं. वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेटास को अगर हम ऐसे टेबल्स में फॉर्म करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उन क्वेश्चंस के आंसर्स सिंपली जल्दी दिए जा सकते हैं. ओके, इसलिए इन फ्रीक्वेंसी टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15. यहाँ पर देखिए ये 15 है तो ये 5 स्टूडेंट्स. द फ्रीक्वेंसी इज 5 मीन्स 5 स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स. नाउ व्हाट आई मीन बाय मोर देन 15 मार्क्स, 15 से ज़्यादा. ओके, सो 16 भी आएंगे, 17 भी 15 से ज़्यादा है, 18 भी 15 से ज़्यादा है, 19 भी 15 से ज़्यादा है, 20 भी 15 से ज़्यादा है. सिर्फ 16 नहीं, 17, 18, 19, 20 भी है. तो ये जो यहाँ से 16 के फ्रीक्वेंसी 17, 18 और 19, 20 सभी की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है हमें. ओके, ये याद रखना, ये सिर्फ 16, 15 से बड़ा नहीं है यहाँ पर. तो 4 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 1 17 + 4 21. So 20 students scored more than 15 marks. Okay, 25 students next question is how many students scored less than 15 marks. अब less than 15 marks का क्या मतलब है? सिर्फ 14 में कितने बच्चों ने किया वही लिख देना है? नहीं, ये 6, ये 7, ये 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, ये सभी 15 से लेस है. तो इन सभी की फ्रीक्वेंसीज को एडिशन करेंगे. तब अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 25
देन 25 स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 15 मार्क्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे लेस देन मोर देन वाले, तो ये आपको याद रखना है कि उससे लेस देन एक ही नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप। ऑब्वियसली जो पहले आए यहाँ पर 6, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो पहला सबसे छोटा होगा, तो 6 इज द लोवेस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप। एंड हाईएस्ट पूछा है तो जो हमने लास्ट में लिखा है दैट इज 20 इज द हाईएस्ट स्कोर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल्स, दैट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये ज़्यादा सिंपल है वैसे तो। When the number of observations is large, it is difficult to write given data in ungrouped frequency distribution table. तो अगर बहुत बड़ा डेटा है और लगभग 200 नंबर्स है, ऐसे 200 नंबर्स है, 2 3 4 5 2 3 5 6 ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, 200 इतना बड़ा डेटा है, तो फिर आप इसे अगर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करोगे तो एक एक को लिखना पड़ेगा, तो इतने सारे नंबर्स, इतने सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, कितना बड़ा टेबल हो जाएगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वैसा करना। तो इसीलिए जब ऐसा होता है, ऐसे बड़े बड़े डेटा होते हैं, तब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करना होता है, हम ग्रुप्स बना देते हैं। ओके, याद रखना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो अभी ग्रुप बनाने के बाद जितने भी, अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, पहले हम ये रीड करके इसे अंडरस्टैंड करते हैं। Such when the number of observations is large, it is difficult to write again data in ungrouped frequency distribution table. Such data is then classified and sorted into group. Such classification is called and grouped frequency distribution table. ये इसी सब में हम लोग एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। देखो ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और 10 है, ये सबको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द ग्रुप 6 बीच में डैश और यहाँ पर 10, तो ये बन जाता है एक ग्रुप 6 to 10। ओके, ये एक ग्रुप बन गया। तो जितने भी यहाँ पर इस पूरे डेटा में 6 to 10 के जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स के लिए हम टैली मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, तो टैली मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन सभी नंबर्स के साथ में यहाँ पर आएंगे। तो वैसे हम ग्रुप बना सकते हैं 11 to 15, तो 11 to 15 यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। तो उसके लिए जितने भी टैली मार्क्स है, 11 to 15 के जितने भी नंबर्स है, उनके लिए एक एक टैली मार्क डालेंगे। तो ये होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाले आगे। अब जानते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए इस चैप्टर से, वो हमें सीखना ही है। तो पहला जो बेसिक टर्म है, क्लास। When the observations are divided into suitable groups, each of the groups is called a class. अब ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के से रिलेटेड है कि अगर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुप्स बना दिए, अभी इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं ग्रुप नहीं, क्लास बोलते हैं। वहाँ पर ऊपर स्कोर की जगह पे हम क्लास लिखते हैं और उसके नीचे उसी कॉलम में सारे ग्रुप्स लिखे जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, इफ द साइज ऑफ अ ग्रुप इज 10, we can make the classes as 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. Means we are taking a difference of 10. Size of a group बोला है, it's not a group of 10. Okay. In the given data, if the lowest score is 16 and the highest score is 54, then we can start with the classes 11 to 20 and end with the class 51 to 60. ऐसे 10 के बनाकर अगर लोवेस्ट स्कोर 16 है तो वो 11 to 20 में आ जाएगा, और हाईएस्ट स्कोर 54, तो 51 to 60 में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं 11 to 20, 20 to 30, या फिर 21 to 30, then 31 to 40, 41 to 50 and 51 to 60। ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं। ओके, इसे हम लोग बोलेंगे, इन्हें क्लासेस बोलते हैं हम लोग। 11 to 20 एक क्लास है, ये 51 to 60 एक क्लास है, तो यही क्लास है, एक बेसिक टर्म। सेकेंड बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक इज क्लास लिमिट। द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट लिमिट ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। यानी कि जो एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो लोवेस्ट और हाईएस्ट लिमिट होती है एक ग्रुप की, उसे हम बोलते हैं क्लास की लिमिट।
एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। इन द क्लास 11 to 20, 11 इज कॉल्ड द लोवेस्ट लिमिट एंड 20 इज कॉल्ड द अपर लिमिट। तो जो हम लोग जितने भी ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, तो इन सभी में पहला जो ग्रुप है 11 to 20, उसमें जो लोवेस्ट लिमिट है, लोअर लिमिट, हम लोग क्लास लिमिट में दो टाइप्स के लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट, हायर लिमिट। तो 11 to 20 इस ग्रुप में लोअर लिमिट है 11, और क्योंकि वो सब छोटा है, स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ से, और हायर लोअर एंड अपर होते हैं, नॉट हायर अप। सो दो टाइप के क्लास लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट क्या है, अगर मैंने एक ग्रुप ले लिया 11 to 20, दिस इज़ अ क्लास, तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो 11 है क्योंकि वो लोवेस्ट नंबर है, और जो अपर लिमिट है वो है 20 क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर है। वैसे अगर इसके बाद 21 to 30, तो इसमें लोअर लिमिट 21 और अपर लिमिट 30। ओके, इसे हम बोलते हैं क्लास लिमिट। थर्ड बेसिक टर्म इज फ्रीक्वेंसी। The number of observations in the data for a particular class is known as the frequency of the class. इसके बारे में आपको तो पता ही होगा कि जितने भी एक ही क्लास के लिए, मतलब अगर एक ग्रुप है 11 to 20, तो 11 to 20 के जितने भी नंबर्स इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी एक ही ग्रुप में जाएंगे, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कि जितने नंबर आए। चलो 11 to एक एग्जांपल देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा फॉर द क्लास 11 to 20 इज 4, मतलब 11 to 20 के बीच के 4 नंबर आए हैं, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 4। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्लास विथ और क्लास साइज और क्लास इंटरवल। 3 नाम है इसके, क्लास विथ, क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर क्लास लिमिट्स or upper class limits of any two consecutive intervals is called the class width or length of the class or size of the class. ये एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। द क्लास विथ ऑफ द क्लासेस इज 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ऐसे ही ग्रुप से। ओके, इस 21 minus 11 is equals to 10 और 30 minus 20 is equals to 10। अब आप बोलोगे ये क्या है क्लास, हम लोग क्लास इंटरवल का मतलब है कितना गैप है दो ग्रुप्स के बीच में। देखो मैं समझाता हूँ आपको। 11 to 20, फिर हमने लिया 21 to 30, मतलब उसके आगे 10 का गैप है बीच बीच में। आपको समझ में आ रहा है? हर एक ग्रुप में 11 to 20 10 नंबर, उसके बाद 21 to 30 10 नंबर, ऐसे 10 नंबर का हमने गैप रखा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। So the class width of the classes 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 is 21 minus 11। ये हमने क्या किया, इसका पहला लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, ये इसकी लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और ये अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट। इससे हम लोग को एक ही क्लास में मिलेगी, दोनों की इक्वली होगी, दैट इज 10। वो होगी क्लास इंटरवल। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो चलो मैंने दो ग्रुप्स लिए 11 to 20 और 21 to 30। अब क्लास इंटरवल निकालना है, तो क्या करेंगे, जो सेकंड वाली जो बड़ी वाली लोअर लिमिट है यानी कि 21, उससे माइनस करेंगे छोटी वाली लोअर लिमिट 11 से, और जो बड़ा वाला अपर लिमिट है यानी कि 30, उससे माइनस करेंगे छोटे वाले अपर लिमिट से, दैट इज 20, और हमें जो भी मिलेगा वो हमारी क्लास इंटरवल है। फिफ्थ बेसिक टर्म इज क्लास मार्क। The average of the upper and lower class limits of a class is called the class mark। यानी कि average of the upper limit and lower class limit of a class। अब average कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, दोनों सभी चीज़ें पूरे डेटा को प्लस कर देती है और अब डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। यहीं पे उसका इसका भी यही फॉर्मूला है क्लास मार्क का, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 21 to 30 इज, ये हमने एक ग्रुप ले लिया 21 to 30, तो उसका क्लास मार्क क्या हुआ, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दैट इज 21 plus 30 upon 2, दैट इज 51 upon 2, दैट इज 25.5। so that is the class mark for this class। आई होप कि ये पांचों ही बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा, और कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ने वाले हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के कुछ टाइप्स उनके। हाँ, इसके कुछ टाइप्स भी हैं। हमने अनग्रुप्ड के टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्रुप के देखते हैं।
There are two methods of preparing a grouped frequency distribution table. First is inclusive method, that we can also tell it as discrete classes. In this method, both the lower and higher class limits are included in the class. So हम लोग दोनों ही को include करेंगे, लोअर और हायर क्लास लिमिट को. अब इंक्लूसिव मेथड में क्या करना है ये दिखाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल की तरीके से. एग्जाम्पल में देखते हैं, द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो. ओके, ये पूरा डेटा है हमारे पास. हमें बोला है कि प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू रिप्रेजेंट द डेटा. ये एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर देखिए सबसे लोवेस्ट नंबर पहले हमको देखना है. यहाँ पर सबसे लोवेस्ट नंबर 11 है. सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा ये हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है. तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर आई थिंक सो 66 नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट नंबर नहीं है. और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर है 1 मिनट, इट्स 74. ये देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर है वो. तो अभी उसी हिसाब से हम लोग ग्रुप्स बनेंगे. लोवेस्ट इज 11 एंड हाईएस्ट इज 74. तो हम लोग 11 टू या फिर 11 टू 20, 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70 एंड 71 टू 80 ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं. क्योंकि लोवेस्ट है 11 और हाईएस्ट है 74 जो इसके बीच में आ जाता है. फिर आई होप कि आपको टैली मार्क्स के बारे में पता ही है क्या करने का. यहाँ पर देखने का कितने नंबर्स पहले झाँकने की कि 11 से 20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं. और उनके लिए चलो यहाँ पर एक 11 आ गया तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐसे स्लैश बना देगा. आई होप कि आपको ये आता ही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. फिर यहाँ पर जितने भी टैली मार्क्स बनते हैं वो हम लोग को यहाँ पर लिख देना. यहाँ पर 3 हमारे मिले तो 3. 21 से 30 के बीच में हमने 4 बनाए तो यहाँ पर 4. ऐसे ये पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल. अब ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 56. इसे हम लोग को पूरे को ऐड कर देना है. ओके, तो ये एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और ये एक इंक्लूसिव मेथड है. इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड क्योंकि इसमें लोअर एंड हायर क्लास दोनों को इंक्लूड किया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड. एक्सक्लूसिव मेथड, जिसे हम लोग ऑल्सो वी कॉल इट एज कंटिन्यूस क्लासेस. In this method, the upper class limit is excluded in the particular class that is included in the next class. मतलब ऐसा क्या होता है, देखो इंक्लूसिव मेथड में क्या हो रहा था, हमने क्या लिया 11 to 20, 21 to 30. यहाँ पर 11 to 20 के बाद हमने 20 to 30 नहीं लिया, 20 को नहीं इंक्लूड किया, हमने सीधा 21 से 30 लिया. लेकिन एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, हम क्या करेंगे 11 to 20, 20 to 30 नहीं सॉरी 20 to 29, फिर 29 टू वैसे हम लोग लेंगे. मतलब जो नंबर हम लोग पहले भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा अपर लिमिट है वो हम लोग पहले ऐसा नहीं कर रहे थे कि सेकंड कॉलम में भी उसे इंक्लूड करेंगे. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा. एग्जांपल इज 5, 10, 5.5, 11, 10.7, 14, 7, 12, 13, 4. दिस इज द डेटा. Now by taking classes 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, prepare grouped frequency distribution table for the given data. ओके, हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी जो कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव होगी. हमें क्लासेस कैसे लेने हैं वो भी हमको बोला गया है. क्वेश्चन में ऐसा बहुत बार मेंशन किया जाता है कि 0 to 5, 6 to 10 और 11 to 15. तो 0 to 5 में 2 नंबर यहाँ पर आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टैली मार्क्स बनाए. 6 to 10 में यहाँ पर 2 नंबर है और 11 to 15 में 4 नंबर है. नाउ हियर आप देख सकते हो द नंबर्स 5.5 एंड 10.7 कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द क्लासेस. आपने यहाँ पर देखा ये हमारे डेटा में हमें 5.5 और 10.7 भी दिया गया है. अभी कौन से क्लास में जाएंगे दे बोलो मुझे. 0 to 5 में तो नहीं जा सकते क्योंकि 5 से ये बड़े है, 5.5 तो 5 से बड़ा. लेकिन 6 to 10 में भी नहीं जा सकते, वो तो 6 से छोटा है. और ये 10.7 कहाँ जाएगा, ये 6 to 10 में तो नहीं जा सकता क्योंकि 10 से ये बड़ा है, 10.7 है. और 11 to 15 में भी नहीं जा सकता क्योंकि 11 से छोटा है. तो ये जाए तो जाए कहाँ. ओके, किसी भी क्लासेस में नहीं जा सकते. टू इंक्लूड दिस नंबर्स इन गिवन क्लासेस वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासेस. हमें क्लासेस की क्लास लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी इनको इंक्लूड करने के लिए. ऐसा बहुत बार ये प्रॉब्लम्स होती है. So if we take class intervals as 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. देखा मैंने आपको बोला ना, अपर लिमिट जो यहाँ पर है उसे हम लोग दूसरे की लोअर लिमिट बना रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे थे पहले 0 to 5 तो 6 to 10
हाँ, तो जो दूसरी अपर लिमिट है वो सेम नहीं है पहली अपर में। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले इसकी जो अपर लिमिट है उसको यहाँ इसकी लोअर लिमिट बना दी। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। 0 to 5 तो हम लोग 5 से कंटिन्यू करेंगे, 5 to 10। ओके, सो ऐसे लेंगे तो ये स्कोर्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर 0 to 5 तो फिर 5 to 10, तो 5 और 10 के बीच में 5.5 आता है ना, 5 से बड़ा, बराबर। और 10 to 15 लेंगे तो 10.7 में आ जाएगा यहाँ पर। कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लासेस 5 to 10 एंड 10 to 15 रेस्पेक्टिवली। So while rewriting the above data in modified class intervals, the question arises that in which class interval the score 10 should be included. That is, अब अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं 5 to 10 फिर 10 to 15, तो अभी ऐसे में हम लोग 10 को कहाँ पर लिखेंगे, जो सिर्फ 10 है। हमारे डेटा में जो 10 है उसे हम लोग 5 to 10 में लिखेंगे कि 10 to 15 में लिखेंगे, तो वो कहाँ पर आएगा। तो उसका आंसर है डेट इज इन क्लास 5 to 10 और 10 to 15, इसमें से कौन से में जाएगा। तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी विल इंक्लूड द स्कोर 10 इन द क्लास 10 to 15 इंस्टेड ऑफ 5 to 10। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो अगर हमने लिया 5 to 10 to 10 to 15, तो ये दो हमारे ग्रुप्स है, उनमें से 10 किस में जाएगा, 10 जाएगा 10 to 15 में। ओके, जो जिस नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग वाले नंबर में जाएगा। मतलब अगर 10 जिस ग्रुप में स्टार्टिंग में आ रहा है उस नंबर में वो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो वो एंडिंग में है, लेकिन हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। दिस मेथड इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। बाय रीराइटिंग द गिवन डेटा एज पर द कन्वेंशन ऑफ एक्सक्लूजन वी गेट अ टेबल एज फॉलोज। अगर हम लोग उसे एक्सक्लूसिव मेथड की तरह लिखेंगे तो ऐसा होगा 0.0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. Okay, so the following points must be remembered while preparing class intervals. The classes should be non-overlapping. हम लोग इसे classes लिखते हैं यहाँ पर। And they should exhaust all values in the data. All values आ जाने चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई रह गया। As far as possible, class size should be the same. सब में same ही होनी चाहिए। The class limits and class marks should be integers of simple fractions. Now let's learn about something about class boundaries. In the inclusive method 11 to 20, 21 to 30, there is a gap between the upper limit of the class and the lower limit of its next consecutive class. So ये देखिए, ये अपर लिमिट यहाँ की और यहाँ की ये जो लोअर लिमिट है इसके बीच में गैप है। ऐसा एक्सक्लूसिव मेथड में नहीं होता था, ये भी 20 होते थे, ये भी 20 होते थे, लेकिन इंक्लूसिव मेथड में इसके बीच में गैप है 1 का। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। These can be made as continuous classes without alternating the class marks, class width and frequency column. हम इसे continuous कर सकते हैं। The average of the upper limit of a class and the lower limit of the next consecutive class is called the true upper limit of that class. मतलब इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट की एवरेज निकालेंगे तो वो होगी हमारी ट्रू अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास, विच इज़ ऑल्सो द ट्रू लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव क्लास। तो अगर हम लोग इसकी ये अपर लिमिट और इस लोअर लिमिट की एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज आएगी वो इसकी ट्रू अपर लिमिट होगी और नेक्स्ट क्लास की ट्रू लोअर लिमिट होगी। आपको ये एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ। 11 to 20 is a class, 21 to 30 is a class, 31 to 40 is a class and 41 to 50 is a class. Are in discontinuous form. They are not in continuous form, क्योंकि यहाँ पर 20 वापस नहीं आ रहा, ये इसके बाद 21 से ये स्टार्ट कर रहा है। So the true upper limit of the class 11 minus 20 इस क्लास की अपर लिमिट 11 to 20 की अपर लिमिट ट्रू, वो भी ट्रू अपर लिमिट विल बी 20 plus 21। मैंने बोला ना इसकी लोअर लिमिट अब इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट का एवरेज, यानी कि 20 plus 21 upon 2 दैट इज 41 upon 2 दैट इज 20.5। अभी जो ट्रू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मैंने यही बोला कि जो हमें एवरेज मिलेगी वो इसकी ट्रू अपर लिमिट होगी और इसकी ट्रू लोअर लिमिट होगी। So 20.5 is the true lower limit of the class 21 to 30. Okay. Thus we get the continuous classes as 10.5, 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5 and 40.5 to 50.5. अब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ये टेबल आपको रिमेंबर करना है अबाउट अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड एज। आपको ये याद रखना है अनग्रुप्ड में कैसे होता है, ग्रुप्ड में कैसे होता है।
आई होप कि आपको ये रिमेंबर रहेगा। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आए। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस 7.3। क्वेश्चन नंबर इज फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट कौन सी होती है? सबसे छोटी वाली, और अपर क्लास लिमिट कौन सी है? सबसे बड़े वाली। तो 20 और 25, सिंपल था ये क्वेश्चन। से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी कि एवरेज ऑफ द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। सो वही करेंगे, ये लोअर क्लास लिमिट 35 प्लस 40 that is upper class limit upon 2, 75 upon 2 that is 37.5. Question number 3, if class mark is 10 and class width is 6 then find the class। हम लोग को फाइंड आउट करना है क्लास। हमारे पास है क्लास मार्क और क्लास विथ। सो लेट द अपर क्लास लिमिट भी x एंड द लोअर क्लास लिमिट भी y ले लेते हैं। x और y ले लिया हमने। फिर क्लास मार्क को हमको दिया गया 10। क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला था? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। ओके, तो हम लोग x इसे लिया और ये y है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 10 इज इक्वल्स टू। अभी क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। हमें पहली इक्वेशन हमारे मिल गई। इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद है हमने चैप्टर नंबर 5 में किया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी हमको क्लास विद 6 दी है। क्लास विद इज द अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज क्लास विद, दैट इज क्लास इंटरवल, वही बोलते हैं। तो वो हमें 6 दी है, तो हम दूसरी इक्वेशन इससे फॉर्म कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। अब यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, ये माइनस वाई प्लस वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये सब अगर आपको नहीं आता, आपको चैप्टर नंबर 5 देखना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x, 20 प्लस 6 26, 2x is equals to 26, x is equals to 26 upon 2 that is 13. Now what we will do, substitute the x is equals to 13 in equation 1. तो x के जगह पे 13 plus y is equals to 20, y is equals to 20 minus 13 that is y is equals to 7. So required class is 7 minus 13 हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, क्लासेस, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्लास है हमारे पास 12 to 13, 13 to 14। ये देखो, ये एक्सक्लूसिव मेथड है ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 14 to 15 बी x। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग x रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न ये टैली मार्क है न फ्रीक्वेंसी इसकी। तो देन फ्रॉम टेबल 5 + 14 + x + 4, ये टोटल तो 35 है, दैट इज ऑफ फुल फ्रीक्वेंसी। तो उसमें x भी आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी। अब आप बोलोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम पड़ेगी? अरे ये टेलीमार्क्स काउंट करके हमें मिलता है ना, 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखते हैं 5। फिर ऐसे ये भी काउंट किया तो हमें मिलता है 14। इसकी हमको ये नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसकी ये नहीं लिख सकते, तो इसे हमने x ले लिया। और ये 4 है तो यहाँ पर 4। तो टोटल तो 35, तो इन सब का टोटल में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 23 इन तीनों का टोटल प्लस x इज इक्वल टू 35। अब x इज इक्वल टू 35 माइनस 23 दैट इज 12। वी विल फिल अप इट। तो अब हम यहाँ पर 12 का ये भी मार सकते हैं टैली मार्क्स। ओके, अब आज के लिए इतना ही। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में।